ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ੈਫੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਲਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਰ ਰਸਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਬੁੱਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਊਰਜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ। जेकर ਅਸੀਂ सीधे काम करेंगे तो ये वरदान बन जाएगा और अगर हम इसे गलत कामों में लगाएंगे तो ये हमारे लिए शराब बन जाएगा। ये हमारी जो ज़िंदगी होती है उसे बर्बाद कर देगा। क्योंकि जेकर असी ऊर्जा नूं चंगे पासे लावांगे तो असी चंगे काम करांगे, ये उल्ट पासे असी इसकी वरतों कीती ते ये सानू कुराहे पा देगी, कुराहे गलत रस्ते पा देवेगी, भाव सानू बर्बाद कर देवेगी। अगला प्रश्न है, कला सानू किस नाल जोड़दी है। कला साडे विच बहुत सारियां कलावां हुंदियां ने। वो कला सानू अपने बारे सोचण ते मजबूर नहीं करदी, वो सानू सारियां लई पूरे समाज लई सोचण ते मजबूर करदी है। उत्तर है, कला सानू अपने आप तो मुक्त करके, सानू अपने अपनत्व तो कढ़ के, अपने निज तो कढ़ के, अपने स्वै तो कढ़ के समाजिक हित नाल जोड़दी है कि असी समाज दा सोचीए, ना कि असी सिर्फ अपने तक सीमित रहिए। नैक्सट क्वेश्चन है, वाद विवाद प्रतियोगी बनन लई किहड़ी बुद्धि दी लोड़ है। असी वाद विवाद तां ही कर सकांगे जेकर साडी भाषा उत्ते पकड़ होएगी। असी शब्दां नूं घड़ सकांगे, नवे शब्द बना सकांगे कि शब्दां दी घाड़ता सानू आउणी चाहिदी है, शब्दां दी बनतर सानू आउणी चाहिदी कि शब्दां नूं असी कित्थे प्रयोग करांगे, किहो जिहे शब्द असी वरतने हन। वाद विवाद प्रतियोगी बनन लई भाषागत बुद्धि दी लोड़ है कि भाषागत बुद्धि साडी भाषा ते पकड़ होनी चाहिदी है। सानू नवे शब्द घड़ने आउणे चाहिदे हन ते शब्दां दी वरतों करनी आउणी चाहिदी है। साडी भाषा उत्ते पकड़ होनी चाहिदी है। शब्दां दीयां बनतरां ते घाड़तां दा सहजे ही प्रयोग करना आउणा चाहिदा है। सानू उन्हां नूं वरतना आउणा चाहिदा है। इस तरह नहीं कि असी वाद विवाद कर रहे हैं तो असी टॉपिक तो ही परे जा रहे हैं। सानू वाद विवाद तो असी तां ही कर सकांगे जेकर दोहां धिरां नूं जिस नाल असी वाद विवाद कर रहे हैं साडा एक कॉमन टॉपिक होवे। अगला प्रश्न है, तालमेल बुद्धि तो की भाव है। तालमेल इस दे नाम तो ही लग रहा है कि किसी नाल तालमेल बिठाउणा, किसी नाल सहमत होकर चलना।
ਤਾਲਮੇਲ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾ पाएंगे कि जेकर ਅਸੀਂ हमारे सामने वाले को समझे, हम उसके धर्म को, उसके विश्वास को, जाति पाति में विश्वास नहीं रखें, हम इन सब के साथ समन्वय होना चाहिए हमारा, तभी हम दूसरों के साथ अपने रिलेशन बना सकते हैं, उनके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत का निर्माता कौन है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिता सी हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रोफैसर मनोविज्ञानिक गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, संगीतक बुद्धि व्यक्ति किस तरह का निखार लिया सकता है? संगीतक बुद्धि जिसकी रुचि संगीत वाल होवे, उस दे दिमाग विच वो संगीत बारे सोचता रहे, संगीत दियां धुनां दा नूं इजाद करता रहे, तो इस पत्तियां विचों, पानियां विचों, हर एक जो भी पंछियां दी आवाज़ां विचों वो हर विचों एक नवीं धुन बना लैंदा होवे। उत्तर देखते हैं, इस बुद्धि का संबंध व्यक्ति की संगीतक रुचि नाल है। संगीतक रुचि नाल, क्योंकि उसकी रुचि संगीत विच होवे। संगीतक बुद्धि वाला व्यक्ति ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕਰਕੇ, ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕਰਕੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਮੌਲਿਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, लेखक ने मनुखी ऊर्जा की किस नाल तुलना की है? पहले असी पढ़िया, लेखक ने मनुखी ऊर्जा की बन बना के संयोजित किए पानी नाल तुलना की है। बन बना के तुलना की है। बन हुंदा है बहुत सारा पानी नूं इकट्ठा करके उस ते अगे मिट्टी, सीमेंट या कुछ भी ला के उसनूं बन देना, उसनूं रोक देना। संयोजित कि उसनूं इकट्ठे किते पानी नाल कीती कि जिस तरह इस तरह पानी नूं इकट्ठा करके जदों उसनूं थल्ले गिराया जाता है तो असी बिजली शक्ति बना सकते हैं, जिस नाल सानूं लाभ मिलता है। तुहानूं पता ही है बिजली साडे किन्ने काम आउंदी है। फिर उस तो बाद अगर असी उस पानी नूं इत्थे तां असी उसका लाभ लै रहे हैं, तो अगर उस पानी नूं असी उस बन नूं रोक खोल दिए, उसनूं एवें ही रोड़ दिता जाए, पानी को छोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? आसपास तबाही मच जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि हमारी जो ऊर्जा है उसे हमें सीधे अच्छे कामों में लगाना है, सीधे रास्ते उसका यूज़ करना है, ना कि हमें गलत कार्यों की तरफ उसे लगाना है। फिर नेक्स्ट है, 8 तरह की बुद्धि के नाम लिखो। इस पाठ में हमने 8 तरह की बुद्धि के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहली है भाषागत बुद्धि। भाषागत बुद्धि मैंने अभी बताया था, भाषागत बुद्धि जिसमें हमें भाषा पे हमारी पकड़ होनी चाहिए, हमें शब्दों को किस तरीके से हम उनका प्रयोग कर रहे हैं ये सब आना चाहिए, तभी हम वाद विवाद कर सकते हैं, तभी हम लगातार किसी बात पे बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है तार्किक गणितक बुद्धि। तार्किक कि हमें लॉजिकली हम किसी चीज़ को कैसे सोचते हैं, हमें उस चीज़ को लॉजिकली सोचना है, हमें उस लोगों से सवाल उठाने चाहिए, हमें नए नए प्रयोग करने चाहिए और किसी भी हमें समस्याओं को हमें हल करना आना चाहिए। ये होता है तार्किक गणितक बुद्धि में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दृष्टिगत स्पेसगत बुद्धि। ऐसी बुद्धि के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो ध्यान होता है ना स्पेस से निर्मित वस्तुएं, जैसे तस्वीरें जो भी स्पेस से रिलेटेड होती है, ग्राफ होते हैं, ग्लोब और जो भी दृश्य कलावां जो जैसी तस्वीरें होती हैं ना स्पेस से संबंधित होती है, उनमें उनकी रुचि होती है, वो उनके बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है स्पेसगत बुद्धि कहलाती है।
वो उन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट है संगीतक बुद्धि। संगीतक नाम से ही लग रहा है कि जिनकी रुचि संगीत में होती है, वो हर एक चीज़ में नया साज ढूंढ लेते हैं, नई धुन बना देते हैं। पानी, पत्तों की आवाज़ से, पशुओं के बोलने की आवाज़ से, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ से वो नई नई धुनें बना लेते हैं। फिर अगला है शरीरगत बुद्धि। शरीरगत बुद्धि जिनका ध्यान खेलने में हो, नाचने में हो, ऐसे काम करने में हो जिसमें हमारी शारीरिक शक्ति लगती हो, उसे शरीरगत बुद्धि कहा जाता है। जो हमारे शरीर से संबंधित कोई भी काम हो, जिसमें खेलना आ जाता है, कूदना आ जाता है, तैरना आ जाता है, नाचना आ जाता है, ऐसी गतिविधियों में जिनका ध्यान हो, उनका ध्यान शरीरगत बुद्धि की तरफ जाता है, वो इसी में अपना ध्यान लगाए रखते हैं। फिर अगली है तालमेल बुद्धि। तालमेल बुद्धि कि हमें दूसरों के साथ तालमेल बैठा के कितने हम अपने मधुर रिश्ते बना सकते हैं, हम कितना दूसरों की बातों को तवज्जो देते हैं, कितना दूसरों के धर्म को, दूसरों की जाति को, दूसरों के विश्वासों को हम कितनी तवज्जो देते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कितना लचीलापन है, हम कितना उनको भी अपनी जगह रख के सोचते हैं, तभी हम दूसरों के साथ तालमेल बिठा पाएंगे। फिर नेक्स्ट है स्वयंमुखी बुद्धि। स्वयंमुखी नाम से स्वयंमुखी मतलब खुद तक। इसमें ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो अपने बारे में सोचते रहते हैं, मतलब वो चिंता में लगे रहते हैं कि वो अपने को रख के बहुत ही मतलब सोचते रहते हैं, लगातार कल्पना करते रहते हैं। तो और उनका ध्यान ऐसे ही काल्पनिक क्रियाओं में लगा रहता है। वो उनका इन ऐसे लोगों का ध्यान मूर्तिकारी, चित्रकारी आदि में चला जाता है। वो साहित्यकारी करते हैं, चित्रकारी करते हैं, मूर्तिकारी, ऐसी जो कलाएं होती है वो अपने विचारों को इस तरीके से बाहरी दुनिया में उतारते हैं। फिर अगला है प्रकृतिगत बुद्धि। प्रकृतिगत इससे नाम तो लग रहा है कि जो प्रकृति नाल संबंधित होवे, कि जिस विच हसी फुल्लां, दरख्तां, समुद्री हलचलां, जंगली जीवां, जंगलां आदि ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇੜ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ अपना ध्यान, ऐसी बुद्धि वाले लोग अपना ध्यान प्रकृति ते ही लाई रखते हैं, उस प्रति सोचते हैं ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ।